Hello everyone. Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, yes. Okay. Yes, sir. Okay. So, welcome everyone to Yogi Gang presents Shapat Samaro on India's Unity Day, which is the National Unity Day, right? So, if I talk about the word unity, first of all, I request everyone to please mute themselves. जितने भी हैं म्यूट कर लो बिकॉज वॉइस क्लियर नहीं आ पाती है. म्यूट एवरीवन. Just the speaker need to unmute. Rest all can mute themselves, right? So unity. So what is the word unity? When we talk about unity, so unity is a very beautiful word which is there in our books from class 5th to class 12th. जब हम class 5th में होते हैं हम एनसीईआरटी बुक्स पकड़ते हैं. उन एनसीईआरटी बुक्स के फर्स्ट पेज पे we have a beautiful page which is known as the preamble of India, which is known as the preamble, which is the first page of the constitution, right? एंड उस प्रियम्बल में बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा गया है वर्ड यूनिटी को, वर्ड इक्वालिटी को, बहुत ही ब्यूटीफुली, राइट? अभी हम आपको प्रियम्बल का प्रॉपर पोर्ट्रे कराएंगे. सो यूनिटी इज समथिंग विच शुड बी देयर एंड विच is there in all aspects of life. Rather, we talk about the professional life, personal life, any of the life. So unity is something which should be there at every phase of life. अगर हम आज यहाँ पे as an organization the योगी गैंग है, यहाँ पे भी we need unity, right? Rather we are in schools, colleges, personal life, anywhere in the world. Unity is utmost important, right? Without unity nothing could be possible, right? Because unity, UNITY, है तो बहुत छोटा वर्ड बट इसका मीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, राइट? यूनिटी इज समथिंग विच नीड टू बी देयर एट every phase of life, at every point of life, right? Since today we are celebrating National Unity Day, so I guess इस डे से ही we can justify the importance of the word unity. I am taking this name very like various times, unity. So while I am taking this word, so I mean it, because unity, if applied in any phase of life, like if take an example, if there is this person by the name of Arush. So if Arush applies the word unity in his life and thinks about unity and do things with the vibe of being united by not being divided but being united, वो thinking अपने अंदर, वो vibe लाए अपने अंदर, right? So since we know at this particular globalized world of ours in the country right now, the country, like we as an Indians, we as an India follow the concept of unity in diversity, right? We have diversified ourselves in terms of the religion, diversified ourselves in terms of the caste, genders, and all of those things. We are very diversified, right? But what keeps us holding is the word unity. We celebrate each and every festival, rather it is Eid, rather it is Holi, rather it is Diwali, any festival, rather if we are Hindu, Muslim, Sikh, Isai, all of the people, they are united, they are there, they are united, not for themselves, not for ourselves, but for the community as a whole, for society as a whole, for the country as a whole, right? So this day should not be wasted, should not be just there as a day, एक दिन की तरह नहीं मनाना चाहिए. Rather than we should convert each day into the unity day, right? हम हर एक दिन यूनिटी के बारे में सोचे, ये नहीं कि आज हमने बात कर ली यूनिटी की जी, आज हम लोग टाई पहन के, कोट पहन के बहुत अच्छी तरीके से वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिटी, एंड देन कल वही माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में नहीं है भाई भाई, राइट? वो माइंडसेट नहीं लेके चलना है हमको. माइंडसेट क्या लेके चलना है? दैट इफ देयर इज एन एक्स पर्सन हु इज नॉट as equal to us, who is not equal in terms of religion, equal in terms of caste, equal in terms of any aspect, so there the role play of unity comes in. वहां पे हमको unity दिखाने की बहुत जरूरत है, right? We need not to focus on religion part of the game, caste part of the game, ऊंची जात नीची जात और हिंदू मुस्लिम and all of those things, because those are divisional barriers. वो divide करते हैं हमको, right? वो divide करते हैं हमको united होने में, equality लाने में और बहुत सारे aspects में, right? जैसे कि if I will be telling you various things, but I guess Vikas is there, so I will hand overing the podium to Vikas. Over to you, Vikas, now.
धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद मुदित भाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लौह पुरुष कहे जाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो इस एकता जो कि कभी रन फॉर यूनिटी, वॉक फॉर यूनिटी के नाम पर मनाया जाता था, आज कोरोना महामारी के चलते हम नहीं मना पाते, तो इसे देश में प्रथम बार यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया हमारा एक मुकाम है, एक वो मंजिल है जो पाने के लिए लोग कई बार कई कोशिशें कर लेते हैं। किसी ने कहा है, किसी एक शायर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम तो जान वस्तु है जिसमें इंसान है, लेकिन कई बार बेजान वस्तु भी कुछ ऐसे उदाहरण दे जाते हैं जो कि शायद हमारी एकता को, हमारी अखंडता को, हमारी स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा महत्व बन जाते हैं। कि मिट्टी से मिलाकर ईंट बनी, ईंट से मली बनी दीवार, और दीवार से मिलाकर घर बना। जब बेजान लोग भी बेजान चीजें भी मिलाकर एकता का संदेश देती हैं, तब मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है कि वो क्यों भेदभाव में बंटता है। जैसा कि मुदित भाई ने बताया, तो उसी में अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया, युवा इसमें क्या कर रहा है, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, युवा इसमें किस प्रकार भागीदार बन सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई चीजें कही, आज वो स्वतंत्रता हमें क्यों दिलाकर गए, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, एकता का क्या महत्व है, ये सब आप सभी को समझाएंगे। योगी गैंग इसमें क्या करता है। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ग्राफिक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा एचआर का काम कर रहे हैं, तो हम यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया, योगी गैंग के मंच पर हम बुलाते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिसमें अद्भुत आत्मविश्वास है, भरपूर प्रतिभा है, और एक अद्भुत अंदाज है, और कि आज नहीं तो कल वो अपना नाम, अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। योगी गैंग, यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया इसी प्रकार अपने कार्य में सफलता की कुछ नई ऊंचाइयां छूती रही है, और कई लोगों को एक ऐसे मुकाम, एक ऐसी प्रतिभा दिलाने में हासिल की है, जिसके संस्थापक को अभी आपने सुना, मुदित पाठक जी को। तो अब मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा हमारे ही बीच एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व को, उनके कुछ उद्देश्यपूर्ण बातें सुनना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा अजितेश्वर सर को कि वो आए और अपने कुछ विचार प्रकट करें, अपने कुछ तथ्य रखें एकता के ऊपर कि कैसे एकता होनी चाहिए, कैसे देश एकता संपूर्ण हो सकता है। अजितेश्वर भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। अजितेश्वर शुक्ला, Yeah, I'm audible now. यू आर ऑडिबल अजितेश्वर भाई। बहुत बहुत स्वागत है ओके। अजितेश्वर भाई। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश में बोलो कि हिंदी में। जैसा आप चाहें, हमारा देश ओके। स्वतंत्र है, और यहाँ पर स्वतंत्रता बोलने के ऊपर भी है, यूथ को भी स्वतंत्रता है। बहुत बहुत स्वागत है। या ओके, थैंक यू फॉर योर welcoming. So my name is Ajitesh Shukla, as many people know here. So regarding this National Unity Day, which we will be celebrating tomorrow, that will be 31st of October, but we are celebrating it now. So regarding this unity, for me, unity is something which is more important when we don't hesitate in talking, like we are sharing our feelings, not thinking in mind about that someone will be getting hurt, someone's like religion we are talking about. Because nowadays, if you see that Hindu, Muslim, these things, political things are like everywhere in the news, and I'm very much fed up. The Hathras case which went happened, then this love jihad angle. So these are some news which are like political things. I won't talk about them much, but I feel very bad and very depressed listening to these type of news which are happening. And UP is not far behind. UP is also like sometimes we see that it's not getting developed too much. So these are some things. Apart from this, for me, unity is brotherhood. Like I'm talking to the person who is understanding me, who is not thinking that I am Shukla, I am Brahman, I am some of other religion. So this is something. And regarding this Unity Day, which we are celebrating, it is for the person's birth, Sardar Vallabhbhai Patel, and we can learn many things from him. It's not, and we have learned. It's not because for me he is the best idol.
he joined 562 princely states together. What we are seeing today's map, India's map, is because of him, not because of someone. I'm not saying everyone is not good, but the thing is, with the help of Mahatma Gandhi's help and Sardar Vallabhbhai Patel, we are seeing what India is today. We are not, and now some people are trying to divide it with Hindu Muslim thing, which I feel bad. So these are something I can talk about for I can talk about this whole day, but it's not the case. We need to understand from our heart, from our mind that people who are like for the politicians, we should not let them to dominate us. Because see, for me, leader is not someone who is controlling you, controlling the followers. Leaders are someone who is like who are for serving the people and the nation for the betterment of the world. And I joined Yogi Gang and other purpose is to make our life and the others' life also a world a better place to live. So that's what I am more concerned. And Modi ji has done a very good job in 2014 when he only introduced with this National Unity Day, if someone don't know, in 2014 only. So this is something which we are trying to celebrate because it helps in our, sovereignty, unity, in हिंदी एकता, सम्मान और सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें अपनी याद करनी चाहिए, कैसे हम लोगों को मिली है स्वतंत्रता, और इन सब चीज़ों का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। और आजकल किसी को कुछ बोरिंग लग रहा है, कि किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या सबको मिर्जापुर देखना है, तो ये सब चीजें एक अलग चीज है। बट हम लोगों को यूनिटी हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम लोग सब आपस में भाई भाई हैं, और किसी में लड़ाई भैर होती भी है तो एक दूसरे में सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। इसी वजह से 2012 में आपका, सॉरी 2012 में शायद आपकी वो बनी भी थी कॉलेज बिल्डिंग, जो बनी हुई है गुजरात में, वडोदरा के बाद। तो यही सब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मुझे अभी, क्योंकि मैं इतना मैच्योर या बड़ा नहीं हूँ कि मैं इस पे पॉलिटिकल डिबेट करूंगा, बट मेरे लिए यूनिटी यही है कि हम सबको साथ में रहना चाहिए। और जैसे कि हम लोग एक साथ खड़े हुए थे जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी, अभी भी हम लोगों को हर चीजों से, चाहे वो कोरोना से लड़ाई हो, चाहे कोई भी डिबेट हो। आजकल देखते हैं कि बिहार का इलेक्शन चल रहा है तो कहीं और लड़ाई चल रही, कहीं कुछ चल रहा है। तो ये सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए हम लोगों को, और कुछ अच्छा करना चाहिए, कोशिश यही करते हैं। बाकी तो मैराथन्स होती हैं आपकी, रन फॉर यूनिटी चल रही है, दिल्ली में अभी होगी कल, और बहुत जगह होती है। तो ये सब चीजें हैं। तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू यू, विकास। बहुत बहुत धन्यवाद अजितेश्वर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बोला उसके ऊपर कुछ बोल पाना शायद ही मुश्किल होगा, पर मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा। ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान लिखेगा, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान लिखेगा, हमेशा एकता का गीत जवान लिखेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये दिन हम अगर मना पा रहे हैं एक जगह बैठकर, एक कोई दिन कोई दिवस हम मना पा रहे हैं, तो वो शहीदों के लिए है। शहीदों के लिए अनेकों अनेक पंक्तियां, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, चाहे हमारे कई और स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने कही है। अब कुछ पंक्तियों से मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ही टीम की एक बहुत अच्छी वक्ता को, सराहा जी को, कि वो आए और अपने वक्तव्य से यहाँ का मन हो। सराहा जी, आप अपना अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को और अपनी पेशकश दे सकती हैं। सराहा जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, सबका स्वागत हो। तो बेसिकली मेरा नाम आपने गलत लिया, इट्स सारा, ओके। तो या तो मैं जस्ट एक ही चीज बोलना चाहूंगी, यूनिटी हम बहुत सुन रहे हैं। सो ये पोएम मेरे भाई ने लिखा है इंडिया के लिए, जो वो न्यू विजन देखता है। तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, तब तक मैं मेरा कैमरा ऑफ करूंगी। The new India. Times have changed from old to new, but people have changed, only a few. Revolting against leaders elected by you, protesting with facts that not many knew. Proudly we call ourselves the Indian youth. We knew the future of our motherland too. Going for a strike, ignoring things we need to do. Our PM is fascist. We say it might or not be true. We live our lives as brother, not caring of our religion. I wish the same goes on, no matter what decision. Progressing in our lives hand in hand, not creating one more fission. A smiling country is what I want to.
see the new India I envision. Thank you, guys. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़े शायर ने कुछ पंक्तियां कही हैं, अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, अब कहाँ मिलने मिलाने वाले रहते हैं। तो इसी पंक्तियों पर अब हम सबसे पहले जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब अपना कैमरा ऑन कर लें। इसके दो मुख्य कारण है, एक तो फोटो खींचेगी जिसका आज का युवा सबसे ज्यादा दीवाना है, पहला, और दूसरा हम सब अब शपथ ग्रहण समारोह की ओर बढ़ रहे हैं। ज्यादा समय और बर्बाद ना करते हुए हम कुछ शपथ ग्रहण समारोह की तो आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर लें। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन कर लें, सभी लोग। मैं आप सभी को 15 सेकेंड का समय दे रहा हूं कि आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, यहां पर मौजूद सभी लोग। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अभी भी कुछ लोग, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आप सब इतना अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। आज का युवा एक बढ़ती रणनीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि हम हैं तो एक देश है। जो लोग कहते हैं कि युवा आज कुछ नहीं कर रहा है, युवा बेरोजगार है, तो नहीं, युवा है। तो युवा एक अच्छे कार्यक्रम को भी, अगर युवा श्रृंगार रस पर उछल सकता है तो युवा वीर रस पर भी उछल सकता है। तो आप सभी अपने माइक ऑन कर लें और आप सभी अपने दिल के समीप एक हाथ रख सकते हैं, जो कि प्लेज के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सर्वप्रथम जो प्लेज होगी वो एकता दिवस पर होगी, फिर प्रियम्बल पढ़ा जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर एकदम शुरू हो जाए तो आप सभी मेरा सहयोग दे सकते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है ठीक, मुदित भाई? जी। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। आप सभी लोग अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत स्वागत है। आप सभी मेरे साथ दो दो शब्दों के साथ बोलेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा, और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाऊंगा, भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं शपथ अपने देश की एकता की जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं द्वारा संभव बनाया मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।
जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद। जय हिंद जय भारत। तो प्रियम्बल है ताकि सब लोग मेरे साथ साथ प्रियम्बल करें। प्रियम्बल स्क्रीन पे शेयर कर दें। हाँ, तो आप सभी लोग प्रियम्बल के लिए तैयार हैं? मैं शुरू करूं? We the people of India. We the people of India. People of India. We the people of India Having solemnly having resolved solemnly resolved to constitute People of India. to constitute India To constitute India India constitute into a into a sovereign, sovereign, Sovereign. socialist, Into a socialist, socialist, secular, secular, democratic republic, democratic, democratic republic and secular, democratic and republic, to secure and to secure, Secure and to secure And to secure to all its all its citizens, citizens, all justice, justice, to all its citizens, social, justice, economic economic, economic and political economic and liberty, political, social, economic, liberty of thought, expression, and political, expression, belief, belief, faith and worship, belief, faith, expression, faith and worship, equality of status, equality of status and opportunity and of and opportunity, opportunity and of opportunity, and to promote among them and all to promote among them and to promote among them all and to promote fraternity, among them fraternity, 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 assuring the dignity fraternity, the dignity of of the individual dignity, of the individual of the individual and the unity and the and unity unity of and integrity of and the integrity nation in our of the constitution, nation. in in our our integrity constitution of the nation. this 26th, In our constitution, I think this is this 26th day of November 1949 1949 1949 to hereby adopt do hereby adopt 1949, do hereby adopt, ourselves enact enact and give and give to ourselves this to constitution. ourselves This to ourselves constitution. this constitution. enact and give Thank you. ourselves Jai this Hind, Jai Bharat. Jai Hind Jai Bharat. Jai Hind Jai Bharat. तुम कर सकते Jai Bharat. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स हैं, युवा हैं, जो एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो युवाओं को सतर्क रहने के, देश के प्रति जागरूक रहने का एक सुझाव देते हैं या सहयोग देते हैं। मैं आज उन सभी लोगों को किसी ना किसी माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज का युवा अगर कहीं ना कहीं देश के लिए लड़ सकता है, देश को संभाल सकता है। अगर हम आज जबकि पॉसिबल नहीं था, कोरोना महामारी पर हमें जरूरत है एकता की, अखंडता की, तो हमने एक नई मिसाल कायम की है। ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, तो आप सभी को मैं इसकी बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और योगी गैंग क्या करता है, कुछ लोग जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, अपने काल को दिखाने के लिए, अपने कार्यकाल को दिखाने के लिए। योगी गैंग यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया, युवा उन्हें एक मंच प्रदान करता है जहां पर वो अपनी सारी प्रतिभा को, अनुसंधान को दिखा सके कि वो लोग पूरे प्रदेश से जुड़कर एक मिसाल कायम कर सके। तो आप सभी लोगों से एक अनिवार्य अनुशासन, एक कह सकते हैं प्रार्थना है कि अपने देशभक्ति को बढ़ाकर रखें। इसी के ऊपर 4 पंक्तियां जो कभी मैंने बहुत पहले लिखी थी, उसके क्योंकि राष्ट्रगान हो पाना शायद संभव नहीं है, तो मैं आप सभी को उसी अपनी 4 पंक्तियां देश के ऊपर बताता हूं और उसके बाद इस सभा को हम समाप्त करते हैं। जिस देश की शान तिरंगा हो,
जिस देश की शान तिरंगा हो, जहां बहती प्रेम की धारा हो, जहां स्वर्ग से भी सुंदर दिखता प्रकृति का अजब नजारा हो। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जिस देश की शान तिरंगा हो, हमारा देश कैसा हो? इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है एकता की, अखंडता की। हमारा देश का प्रधानमंत्री, राजा, जिस देश का राजा, कई बार हम उदाहरण देते हैं चाइना, रशिया, क्या आप सभी जानते हैं कि वहां कितना राइट टू स्पीच है, कितना राइट टू इक्वेलिटी है? चाइना में कोई एक मनुष्य राइट टू स्पीच या कुछ बोल नहीं सकता। आप अपने देश में बड़े से बड़े नेता से सवाल कर सकते हैं, आप अपने देश में छोटे से छोटे किसी आप अपने देश में स्वतंत्र हैं, आप अपने देश में निष्ठावान हैं। तो उसी पे 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि इस समय युवा कैसा हो। जिस देश की शान तिरंगा हो, जहां बहती प्रेम की धारा हो, जहां स्वर्ग से भी सुंदर दिखता प्रकृति का अजब नजारा हो, जहां गंगा जमुना सरस्वती, जहां गंगा जमुना सरस्वती संगम की बहती धारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। जिस देश की वायु में बहता, जिस देश की वायु में बहता, पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, एकता और भाईचारा हो, जहां एक नहीं 100 वीरों के। ये देश ना हमसे चल रहा है, ना आपसे चल रहा है। ना देश कहता है कि आप मर जाओ देश के लिए, ना देश कहता है आप संभल जाओ देश के लिए। देश कह रहा है आप अपने घर रहो, आप अपने घर सुरक्षित रहो, आप अपने देश घर संभव प्रयास हो कि आप अपने अपनों को सुरक्षित रखो, अपनों को सुरक्षित रखो। आज की सबसे बड़ी पहल, अपनों को सुरक्षित रखो। देश कुर्बानियां नहीं मांगता, वीर कहता है कि सेना पर देश की रक्षा हम कर लेंगे, आप अपनी रक्षा कीजिए। जिसे एक नहीं 100 वीरों के बलिदानों ने संवारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो। जिसे गणतंत्र के संविधान के, ध्यान रखिएगा, जिस संविधान के एक सूत्र में बनता सारा मुल्क ये सारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो। ये पूरा विश्व कोरोना महामारी के लिए इस समय सलाम करता है, भारत की निष्ठा को, भारत के एकता को, भारत की अखंडता को। एक मां से बिछड़कर एक मां को बचाने, बड़ी ही विकट स्थिति होती है जब कोई सैनिक अपने घर से सीमा पर जाता है कि क्या कुछ पैसों के लिए। जब किसी एक जगह से ये आवाज सुनने में आती है कि भाई सैनिक तो होते ही शहीद होने के लिए, तो कभी शहीदों के परिवार से पूछिएगा कि क्या वो फीलिंग होती है, क्या हो सकता है। तो उसके लिए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। एक मां से बिछड़कर एक मां को बचाने, जहां जाता वीर ये सारा हो, एक नहीं 100 वीरों से एक नहीं 100 गोली खा, हंसे ऐसा रात बुला हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो। मैं यही वाणी को विराम दूंगा और 4 पंक्तियों से कहूंगा, अटल जी ने एक बार कहा था और ये बात हमारे संविधान में, लोकसभा में कई बार बोली गई और आप पहचान जाएंगे किसने बोली थी। ये धरती वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। नदी, यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी कोई गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया, योगी गैंग आप सभी का धन्यवाद करती है। यहाँ के संस्थापक मुदित पाठक जी, हम और बाकी सभी लोग आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर आए और अपना समय दिया। क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हर्षिता मैम? यस हाँ जी हाँ जी विकास। हाँ, तो आप सभी से एक निवेदन है कि देश को समर्पित कुछ ऐसे पहलू हैं जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सभी लोग देश के लिए समर्पित हों। हम कुछ समय देश के लिए नहीं निकाल पाते, वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। आज देश हमसे कह रहा है कि हम घर में रहें, तो हम घर में रुके, अमूमन कामों के लिए बाहर निकले, 2 गज दूरी बनाए रखें। अमिताभ बच्चन जी भी कह रहे हैं मास्क पहने रखें, 2 गज दूरी का पालन करें। सभी लोग, एक देश का राजा अगर हाथ जोड़कर निवेदन करे तो समझ जाना चाहिए कि देश विकट स्थिति में है। अब काफी हद तक स्थिति सुधरी है मगर बिगड़ी नहीं है। तो युवा का कर्तव्य बनता है कि हम घर से बैठे ऐसे कई और संस्था जागरूक कार्यक्रम करें और देश को जागरूक करने की कोशिश करें और हर पल प्रयास करें कि हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। कई बार हम हमेशा सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, अभी मैं बिजी हूं, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अभी मेरी शादी हो गई है, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अभी मैं बुजुर्ग हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन बीत जाता है, कुछ ज्यादा समय नहीं लगता। हमारा दिन का 1 घंटा सिर्फ हमारी प्रतिभा ही नहीं निखरेगी, देश का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं।
तो आप सभी से निवेदन है, सुरक्षित रहे, एकता अखंडता का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें। और अगर इस माहौल में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, मुझसे योगी गैंग से, यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया से कोई त्रुटि हुई हो, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अब कोई कुछ बोलना चाहता है इवेंट के लिए, कोई भी आप में से बारी बारी से मुझे चैट बॉक्स में बताए, मैं आप सभी को मौका दूंगा। आप सभी बारी बारी से हमें बता सकते हैं, बारी बारी से, अगर कुछ कार्यक्रम के बारे में या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आप युवा हैं, आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी 1 2 3 स्टार्ट। कोई कुछ भी बोलना चाहता है? हेलो। हाँ, या बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने अजितेश्वर सर को कहा था कि वेबसाइट के बारे में हमें वेबसाइट बनाना है एक, क्योंकि जब भी मैं एचआर का बंदा हूँ और जब भी हम किसी को फोन करते तो सबसे पहले वो ये नहीं मांगते कि इंस्टाग्राम का लिंक क्या है या फिर यूट्यूब का क्या है। सबसे पहले वो यही मांगते कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट बताओ ताकि हम वेबसाइट में जाके देखें। इवन जब मुझे भी अपॉइंट जब किया था तब मैंने भी सबसे पहले वेबसाइट के लिए ही चेक किया था, द योगी गैंग बोल कर, और मुझे कुछ मतलब योगी आदित्यनाथ का मुझे एग्जैक्टली देखा था मैंने। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हम एक वेबसाइट बनाए, मतलब एक प्रॉपर वेबसाइट, नॉट वर्डप्रेस या फिर ब्लॉग वगैरह, एक परफेक्ट वेबसाइट बनाए। या फिर हम एक डिपार्टमेंट बना के, उसके लिए मैंने अजितेश सर से बात भी किया था और एक बंदा रेडी भी था, लेकिन वो किसी काम की वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाया। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक वेबसाइट तो जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अब भी हमारा स्टार्टिंग स्टेज है। अभी स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम थोड़ा तेजी से बढ़े तो अच्छा होगा। बहुत जी, आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। पर मैं Thank you, Atul. काफी and for the this is a very good idea Most welcome. and we'll implement it. Sorry. Thank you so much. ओके, हम सब आपके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमें आपके सुझाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर मैं चाह रहा था कि इस कार्यक्रम या एकता के ऊपर अगर कोई कुछ भी अपना कुछ संदेश देना चाहे तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, थैंक यू विकास। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगी कि जब हमारी कंट्री को अंग्रेजों ने का राज था, तब भी पूरा इंडिया एक साथ आया था और इंडिया को आज़ाद दिलाई थी। और आज जब कोविड-19 के टाइम पे हम इस तरीके से परेशान हैं, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक साथ हो चुकी है। कई चीजें हो चुकी हैं, तो मतलब यूनिटी सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता, यूनिटी के कई पहलू होते हैं। चाहे उसे हम अपने घर में देखें कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो हम एक साथ मिलके कर रहे हैं, कि या फिर हमारा देश, सिर्फ सोसाइटी हर चीज नहीं होती। हम अपनी हमें अपनी हर उसको लेके चलना चाहिए, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो। थैंक यू। हाँ, जैसा कि अजितेश्वर भाई ने बहुत अच्छा एक अभी चैट बॉक्स में अपना सुझाव दिया कि बी यूनाइटेड बी ट्रू, मतलब एकता रखो और सत्यता रखो, अपने अंदर एकता और सत्यता बनाए रखो। व्हाट हैपेंड कांट बी चेंज्ड, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पास्ट फॉर बेटर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस सबके लिए एक मुख्य जो शब्द बन सकता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम अपने कल का विचार करें और बीते हुए कल पर ध्यान ना दें और अब पर कुछ विचार करें कि हम जो बीत चुका उसमें तो कुछ बदलाव नहीं कर सकते, पर आगे आने वाले कल के बारे में और अभी हम परिश्रम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमसे जुड़े, देश के लिए जुड़े। देश नहीं, आज नागरिकता की जरूरत है। तो अपने, और एक और बात अजितेश्वर भाई अभी कह रहे हैं कि अपने भूतकाल से कुछ सीखें, मतलब जो बीत चुका है उससे कुछ सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला आपने अजितेश्वर, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अतुल भाई के भी सुझाव पर बहुत किया जाएगा, प्रण लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई। और ओके, मैं कुछ और भी मैं कहना चाहता हूँ। जी एक्चुअली मैंने अभी एक रेडियो ड्रामा किया था, ठीक है। तो उसका मेन कंसेप्ट ये था कि ब्राह्मण और शूद्रा का जो डिफरेंस जो है, मतलब शूद्रा नहीं, काइंड ऑफ एक क्रिश्चियन है, वो मंदिर आना चाहती है तो ब्राह्मण पुजारी जो उसको मना करता है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो अभी भी हमने यहाँ पे काइंड ऑफ किसी ने ब्राह्मण या ब्राह्मण वर्ड यूज किया था और हमने भी मतलब
जितने भी लोगों ने भी बात की उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूज किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम पहले हमारे दिमाग से ये जो कंसेप्ट है कि हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, या फिर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो हम एक बार निकाल ले। जी क्योंकि जब तक हम वो नहीं निकालेंगे तब तक हमारे बीच में ना यूनिटी आएगा ना इक्वालिटी आएगा। जी 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 ये मैं सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, प्लीज ये बहुत एक बार आप भूल जाना, एक बार प्लीज एक रिक्वेस्ट है। अरे ऐसे मत बोलो, हाथ जोड़ के बोलने की जरूरत नहीं है। वी कम्प्लीटली अग्री विद नहीं, यू अब अभी एंड बात ये है कि अभी यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर हम मैंने अभी आई थिंक 12 लोग हैं अभी इंक्लूडिंग मी, एक ने मतलब 11 लोगों को अवेयर किया। अब हम ऐसे ही अगर हम करते रहे इन फ्यूचर में तो शायद क्या पता 50 या 60 साल में ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत क्योंकि हर कोई यही चाहता है बिल्कुल। कि मतलब कम्युनल राइट्स वगैरह ना हो इस सब को लेके। और हमने अभी रिसेंटली रिलीज 2 मूवी देखा हो, मतलब आर्टिकल 15 और आश्रम वेब सीरीज जो है उसमें भी यही मतलब सेम प्लॉट है कि मतलब ब्राह्मण ने मतलब ये किया उसके बाद वो कहीं और जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो इन फ्यूचर। जी 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 बहुत खूब बहुत खूब। कोई नहीं, आप सभी का बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद कि आप सब लोग जुड़े। अब हम समय की सीमा को नहीं बढ़ा सकते और समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने जो भी फोटोज लिए हैं ग्रुप पे सेंड कर देना यार। टिल टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।